से एक रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। हिंदी में है, ज़ाहिर सी बात है। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड ये दूसरी स्पिरिट बेबीज़ की रीडिंग है। ओके, सो वील सी कि आपके स्पिरिट बेबीज़ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस इज़ कि जब मैं इसको बनाने जा रही थी द आइडिया केम इनटू माय माइंड ऑन 11/11 टुडे। ओके, सेकेंडली कल मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी एंड वहाँ पे पूरे दिन पूरे ट्रिप पे आई मीन इन द होल जर्नी बच्चे ही बच्चे थे। ओके, एंड ऑल्सो मेरे को अपने बर्थडे की काफ़ी याद आ रही थी आजकल एंड आई स्पेंड माई बर्थडेज अराउंड किड्स एटलीस्ट फ्रॉम द पास्ट 2-3 years I do because kids make me happy, a lot happy. And also with that I was also thinking about um, in general about kids, कि like I have a younger cousin brother, so I was thinking about him as well कि उसके साथ भी घूमने जाना है and everything. So yes, basically like I saw a lot of synchronicities, and for that matter I really think, and then again I saw another reading on Instagram which clicked to me that yes, I should do another spirit babies reading because maybe you need it a lot. Okay, um, because I seriously I'm seeing a lot of messages related to it. I've seen a lot of synchronicities related to it, so I really thought that I really think in fact that you really need this message. Okay, so without much further ado, obviously this is not a pick a card reading, this is a general collective reading, which is again genderless and timeless. So you can be spirit mama, you can be spirit father. Okay, like like the daddy. Okay, so take how it resonates obviously and leave what doesn't. Okay, और वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई एडवाइस वाली चीज़ ऐसी होगी, बट इन केस अगर हो तो उसे फॉलो कर लेना, आप ही का बेनिफिट होगा उससे. Also, the song Don't Let Me Down by Daya comes in my mind, जब मैं ये कर रही थी, सोच रही थी मतलब करने का, तो हो सकता है आपके स्पिरिट बेबीज आपसे ये कहना चाह रहे हैं, या वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं. मे बी यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट. So again I must remind you, this any of my readings do not justify any kind of toxic narcissistic behavior, any kind of abusive situation or people or anything like that. Okay, and I am not the one who supports third party situations at all. So if you're watching for somebody, अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला है या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज आई डोंट डू रीडिंग्स फॉर थर्ड पार्टीज specifically, I'm telling you. Okay, unless I and I don't do readings regarding negativity and all of that thing, but if I feel intuitively कि हाँ मुझे करना चाहिए, only then I do that, otherwise no. Okay, I've just one card related to third parties, and that's also that it's not justifying third parties at all. So if that is your situation, you can click off right now. Okay, because most probably it will not resonate with you if that's the case. And I may scribble as well for you. I think I will do that. Okay, and that's why I have a sheet of paper with me right now. ओके, आई हैव दिस बिकॉज मैं स्क्रिबल करूँगी वो चीज़ जो मुझे लगेगा कि आपके स्पिरिट बेबीज आपसे कहना चाहते हैं. ठीक है, टू whoever the viewer of this reading is. Again I must remind you कि अगर आपको ये रेजोनेट करती है, मुझे प्लीज़ बता देना. मेरे रीडिंग बनाने का पर्पस ही होता है कि किसी के साथ रेजोनेट कर जाए, किसी को हेल्प मिल जाए, किसी का जो मैसेज है जो मेरे थ्रू जाना था उनको वो मिल जाए. तो अगर ऐसा होता है तो मुझे बता दिया करो, बिकॉज that kind of serves my purpose. Okay, serves the purpose of the video, serves the purpose of investing my time into this. ठीक है, तो and that is more important for me than financial abundance. Like financial abundance is important, I am not sabotaging it, I'm not saying that it's not important, but इस चैनल पे जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज़ कि like it doesn't satisfy me, and I don't do work just to
just to earn money. Okay, तो I want that kind of satisfaction, and अगर आपके साथ resonate करता है तो I get that satisfaction from my work, that I could help someone. So one of the primary purposes of making these videos is to help you. Okay, help anybody, even one person is like, even if it helps one person, that's enough. Okay, मुझे नहीं चाहिए कि एक चंक को हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको हेल्प करता है ये तो मुझे प्लीज़ बता देना. ठीक है, प्लीज़ मुझे बता देना. एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक मैसेजेस पसंद में आते हैं, तो आप दूसरे भी पहले बार तो देख सकते हैं. ठीक है, हो सकता है आपके लिए और भी हो मैसेजेस. और इसके एंड में मैं वैसे भी जो इससे पहले मैंने जो स्पिरिट बेबीज़ वाला वो वीडियो करा था वो मैं कनेक्ट कर ही दूँगी, जाहिर सी बात है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट या लाइक अगर कोई सजेशन हो आपका, कुछ भी है ना, तो भी आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, तो रियली थैंक यू सो मच. और एक आधा जो मुझे कोई कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग द रीडिंग्स दैट यू हैव सीन, तो मुझे रिस्पॉन्ड करने के लिए थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ओके, एंड what else, let's just start on to the reading now. ठीक है, तो देखते हैं स्पिरिट बेबीज मैसेजेस टेक्स्ट से. ये मेरी हैंडमेड कार्ड्स हैं, वैसे भी इन पे मैंने कॉपीराइट वैसे भी लगा रखा है, नहीं भी लगाया होता तो भी. ठीक है, मत कॉपी करना यार. मैंने देखा है दूसरे लोगों के आइडियाज़ कॉपी करते रहते हैं लोग. मत क्या करो ऐसे प्लीज़, अगर आप करते हो तो. और अगर कोई और करता है तो उनको प्लीज़ कॉल देम आउट कि ऐसे मत करो. ठीक है, अब देख लेते हैं आपके स्पिरिट बेबीज़ का व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है. ओके, never be greedy and ask for something unnaturally because the desire will surely manifest but will soon prove to be fatal. ओके, आपने कुछ ऐसा मांगा है क्या जो आपको अननेचुरली नहीं मांगना चाहिए था. अगेन एक और चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ. ब्लैक मैजिक, वूडू, ये सब करने से कुछ नहीं होता. ठीक है, हो सकता है जैसा कि मैंने लिखा है कि डिज़ायर विल श्योरली मैनिफेस्ट, बट देन अगेन उस मैनिफेस्टेशन को कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, बिकॉज वो चीज़ आपको मिल तो जाएगी, बट देन इन टर्न यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू फेस. ठीक है, तो डोंट यूज़ अननेचुरल मीन्स टू गेट वॉट यू वॉन्ट. ठीक है, ओके, डोंट वरी अबाउट मी मॉम, आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस इन रिवर्स. ओके, तो ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने लालच में आके कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अब आपके स्पिरिट बेबीज़ को कुछ डेंजर है. लग तो मुझे रहा है डेंजर का. वी नो यू आर बिजी मॉम बट प्लीज़ गिव अस सम ऑफ योर अटेंशन एंड केयर टू प्लीज़. ये मुझे लग ही रहा था ये वाला आएगा रीडिंग करने से पहले. हेड्स अप मामा, इट्स ओके दैट यू आर बिजी, वी कैन टॉक व्हेन यू आर नॉट ऑक्यूपाइड. ओके, तो सी द थिंग इज़, the common thing is that your spirit babies know that you're busy. ठीक है, for some of you you need to pay attention to your spirit babies, and कुछ लोगों का काम हो जाएगा just by seeing this reading, just by getting this message. कुछ लोगों को लेकिन ये रीडिंग देखने के बाद भी अपने स्पिरिट बेबी से जिस भी तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू आई डोंट नो स्क्रिबलिंग और व्हाटएवर थ्रू आर्ट, आप उस तरीके से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए. ठीक है, और मे बी स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, मे बी दे जस्ट वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन. ठीक है, तो उसकी वजह से उनके साथ आप शायद अपने स्पिरिट बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकें. तो ऐसा करिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि 2 अलग अलग चंक के लिए मैसेज आ रहे हैं इसमें. डोंट अबैंडन मी इन रिवर्स, तो सी ये इसके साथ जाता है कि यू आर बिजी, दे नो कि यू आर नॉट अबैंडनिंग देम. ओके, फॉर द चंक हु इज़ बिजी एंड
आपको चिंता हो रही है कि आपके स्पिरिट बेबीज़ को लग रहा है कि आपने उनको अबैंडन कर दिया, एंड ऐसा नहीं है आपके स्पिरिट बेबीज़ की तरफ से, तो उपाय है कि वो नहीं ऐसा मानते हैं कि आपने उनको अबैंडन किया, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, देन देर इज़ वी हैव योर बैक मॉम, वी हैव ऑलवेज हैड योर बैक, यू आर नोटिसिंग नाउ इन रिवर्स। तो ये तो इसके साथ जाता है, ठीक है, एंड ये इसके साथ भी जाता है, ठीक है, जिसमें ये फिर बात आ जाती है कि ये जो दूसरा चंक है, जिन्होंने लालच में आके या किसी भी कारण से कुछ अननेचुरली मांग लिया, जिसकी वजह से उनके स्पिरिट बेबीज़ अब थोड़ा डेंजर में आ गए, ठीक है। दो अलग अलग चंक ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस, ओके, एंड उसके लिए एक जो है उसमें क्या है कि यू बिकेम ग्रीडी एंड समथिंग, एंड देन उसका खामियाजा आपके स्पिरिट बेबीज़ भुगत रहे हैं, एंड दूसरा जो है यू आर बिजी, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, एंड योर स्पिरिट बेबीज़ आर गिविंग यू हेड्स अप, ठीक है। ये जो है जिन्होंने ग्रीडी होकर अननेचुरली चीज़ें मांगी और उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा उनके स्पिरिट बेबीज़ को, उनके बिहाफ पे, उनके स्पिरिट बेबीज़ चाहते हैं कि वो उन पर ध्यान दें, मतलब उनके जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने स्पिरिट बेबीज़ पे ध्यान दें, इसलिए चाहते हैं ताकि वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें अपने अच्छे कर्म करके, अपनी जो भी वॉट एवर यू हैव wronged, you should correct it, and then to bring your spirit babies out of any trouble that they are in, okay। एक और कार्ड लूँगी मैं इससे बस, क्या कहना चाहते हैं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग यू टू मीट यू एंड डैडी एंड टर्न्स इन रिवर्स, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, ओके, कनेक्शन में नहीं है आप लोग अपने स्पिरिट बेबीज से। टॉप ऑफ द डेक इज डैडी मामा वांट्स टू टॉक टू यू इन रिवर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज वी आर ऑल्सो डिफरेंट बट यू ट्रीट अस इन द राइट मैनर। तो अगेन जिनको हेड्स अप मिल रहा है वो स्पिरिट बेबीज़ आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, एंड जिनकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल फैमिली भी डेंजर में आ गई है, इनके लिए ये मैसेज है, यू हैव टू द पीपल जिनकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल फैमिली डेंजर में आ गई है, यू हैव टू मेक थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज आपकी वजह से गड़बड़ हुई है, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों के इन एक्शन की वजह से चीज़ों की गड़बड़ हुई है, आप कुछ कर सकते थे, आपने किया नहीं, ओके। इसमें देख लेते हैं आप एंसेस्टर्स डेक से कि क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट बेबीज़। Have faith on yourself, you don't need anyone to help you, we are here to help you when you need, and otherwise too you are enough alone, okay। और ये रिवर्स में आया है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इन रिवर्स का मतलब ये नहीं कि अपने साथ ऑनेस्टी से नहीं रहना है, इसका मतलब ये है कि अपने साथ तो आप ऑनेस्ट हो, लेकिन अपनी ऑनेस्टी के चक्कर में दूसरों के साथ ट्रेजरी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरों के साथ भी ऑनेस्टी रखनी है, दूसरों पे खुद पे तो फेथ भी रखना है, ठीक है। अब ऑल्सो विद दिस बी ऑनेस्ट इन योर सेल्फ इन रिवर्स इज़ ऑल्सो, हो सकता है कुछ लोग जो हैं जो अपने स्पिरिट बेबीज़ की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव सेल्फ टॉक में, सेल्फ क्रिटिसिज्म में, सेल्फ सैबोटाज में चले गए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्पेस नहीं है जिसमें आप अभी हैं, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ सैबोटाज, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, आप इससे बाहर निकलेंगे क्योंकि योर ऑरा अफेक्ट्स योर स्पिरिचुअल फैमिली एज वेल, ओके। इसलिए एंसेस्टर्स डेक में भी ऐसे ही कार्ड्स आए, ठीक है। तो आपको उससे निकलना पड़ेगा ताकि यू कैन मूव फॉरवर्ड इन अ बेटर वे, ओके, एंड यू कैन ensure your safety and your spiritual family safety as well। ये बॉटम ऑफ द डेक था।
यस कुछ डेंजर है. ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज, so you, with the help of your ancestors, you have to bring your spiritual family and yourself out of the negativity you are finding yourself in. ठीक है. अब बस मैं सोच रही थी हीलिंग मेथड से भी कर लेते हैं आपके लिए, बट मुझे अब नहीं लग रहा हीलिंग मेथड से करने के लिए. अब मैं बस आपके लिए स्क्रिबल कर दूँगी थोड़ा. ठीक है. So I did the scribbling. तो scribbling में कुछ ड्रॉ तो नहीं किया, स्क्रिबल भी नहीं किया, बट आई कुड सी some things. Okay, so I could see light, a dark room near staircase in a school or hospital where कोई nurse या school teacher is walking in white uniform. ठीक है. Then I could see floor मेरे को दिखाया 2-3 बार. फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. फ्लोर कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या बिल्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकती है. ओके, अपार्टमेंट भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. मे बी यू आर गोइंग टू मूव, मे बी, आई डोंट नो. या आपको शायद किसी पुरानी जगह पे जाने की ज़रूरत है. आई रियली डोंट नो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके. देन आई कुड सी विंडो. ओके, विंडो में जो ग्रिल्स लगे होते हैं वो. ठीक है. फिर क्लासरूम, टेबल, दरवाज़ा, ताला, बिस्तर, खिड़की, कूलर. ठीक है, हवा वाला कूलर. ठीक है. पार्किंग जहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं, पार्किंग. गैलेक्सी, आई होप यू नो व्हाट गैलेक्सी इज़. ठीक है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. ठीक है. गैलेक्सी में फास्ट मूविंग प्लैनेट, एस्ट्रॉइड जैसा कुछ. ठीक है. देन दैट्स गार्डन. आई कुड सेंस फियर. Maybe you're afraid, or maybe your spirit babies are afraid. Yeah, your spirit babies may be afraid because मैंने बताया था आपको कुछ थ्रेट वाली चीज़ है यहाँ पे. यप. हाँ, यहाँ पे कुछ थ्रेट वाली चीज़ है. तो फियर. मिरर. ठीक है. तो मिरर इज़ समथिंग जहाँ पे मिरर से आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ रियलिटी विच इज़ ट्वाइस फार अवे, and also a reality which is inverted. Okay, it's not exactly the reality. So maybe you are twice far away from the reality. Yep. I can really sense fear while I'm telling you this, though. I don't know. Maybe they're afraid, very afraid. तो बस यही था आपके लिए आज के लिए. तो इतना ही था और तो कुछ नहीं. So I've already told you, if you like it, then like, comment, share, subscribe and press the bell icon. So I'll see you in the next reading. Till then, have a good day. Be safe, ताकि आपके spiritual family भी safe रहे. Okay, उनको भी आप protect करिए ताकि वो भी आपको protect कर सकें. And yeah, be safe, be happy, and I'll see you in the next reading. Till then, bye.